Okay, so yesterday we saw what is inheritance. Okay, the first property of object orientation, right? That is inheritance. Inheritance means to inherit some properties from ancestors or parent. Not only parent, it can be ancestors also. Okay, ancestor mean dada pardada. Okay, don't confuse with anything else. Ancestor means father of your father, mother, I mean parent of your parents, like that. Okay, okay, fine. Let me turn off my video. So we have seen uh, inheritance, right? Did you go through the video of inheritance or did it get time? Okay, okay. So what is the next property? Next property is polymorphism. Polymorphism. What is the meaning of poly? What is the meaning of morph? Okay, poly, polyclinic. Did you heard this word polyclinic? Why it is called polyclinic? Poly means many, in which I mean a clinic which tests many health tests or deals with many health tests, right? Health related examinations, that is called polyclinic. Okay, poly means many. Morph. What is morph? Latin word morph. It is a Latin word. Okay, Latin word. Morph means way or path. ठीक है, तो polymorphism many way. Okay, when we are calling, when we are calling same thing in different way is called polymorphism. Okay, same thing in different way of calling is called polymorphism. Okay, now जावा कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये चीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि जावा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो अलग है ना, मतलब वो तो टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट होंगे. तो पॉलीमॉर्फिज्म डील्स विथ मेथड. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, polymorphism deals with Java methods. Okay, Java methods. So polymorphism means calling the same name method, calling the method, calling the or mentioning, not calling, actually writing the method, writing the method with same method name.
This is called polymorphism in Java. Writing the method with same method name is called polymorphism in Java. ठीक है? You will understand why I am saying it. Okay. No. See, polymorphism, or rather writing the same method in Java. ठीक है? Writing a same method in Java can be achieved in two ways. Can be achieved in two ways. One is called method overloading, and number two is method overriding. So what are the two methods? Method overloading and method overriding. ठीक है, याद रहेगा. सेम मेथड हम लोगों को लिखना है, सेम मेथड नेम, मेथड विथ सेम मेथड नेम, नॉट द मेथड बॉडी. ऑब्वियसली सेम मेथड नेम हमें लिखना है, बट विथ different approach. So there are two ways to do that. One is method overloading and another is method overriding. Got it? मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग समझा क्या चीज़ है? मतलब थियोरिटिकली नहीं, क्योंकि थियोरिटिकली तो मैं अभी समझाने वाला हूँ, बट ओवरऑल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है समझा क्या? पॉलीमॉर्फिज्म एक मेथड, मतलब जावा कॉन्टेक्स्ट में सेम मेथड नेम में हमें सपोज डिफरेंट काम करवाना है. ओके, सपोज तुम सेलेनियम में कुछ कर रहे हो, डॉट क्लिक. ओके, नाउ you have some click method also which can accept web element. You have one click method which can accept web element as well as wait time. Okay, so click method name is same, but we have different arguments, right? We have different arguments. So this particular phenomena is called method, or rather polymorphism. Okay, polymorphism. Got it? Now let's see how it happens. How it happens. Now suppose I have a class. Let's say class polymorph, right? This is my class, public class polymorph, write that, public class polymorph. Now first thing is method overloading. Suppose I have one method void, let's say add, void add two numbers, int n1, int n2. Okay, so what will be doing here? Sys out what? n1 plus n2, right? This will suffice. Now I want the same, I mean same method should do addition of three numbers also. It is a two numbers, right? You cannot place more than two numbers in the argument. You cannot add more than two numbers with this particular method. But I want one method which can handle two numbers, three numbers, four numbers, any numbers, right? So what we'll do, we'll again write another add method
okay, with 3 int n2 int n3, like that, okay. And here we'll have sysout n1 plus n2 plus n3. So when you will call this add method, from other class or say same class in the public static void main, so suppose add 1 plus 2, if you are doing, you will get 3. Add 1 plus 2 plus 3, if you are putting, you will get what? 6. So you have a provision of addition of more than 2 numbers, that is 3 numbers, okay. This particular phenomena is called method overloading. What is method overloading? When we have same method name, argument, I mean this thing, right? Return type is not what I say, return type is not that valuable in method overloading. Whatever method, I mean return type could be there, it won't affect. When two methods in the same class, has same name, okay, but different arguments, different number of arguments or different type of arguments, that is called method overloading. Method overloading. समझा मेथड ओवरलोडिंग क्या है? Different type of argument or different number of arguments. Okay, it is also possible, suppose you are trying to add two floats, or rather two doubles, okay. So void, it's a void add, same method name, okay, int, sorry, ये है double n1 double n2, that is also possible, you will not get any error. Otherwise, if you are putting add n1 add int n1 int n2, again add int n1 int n2, okay, then you will get duplicate method error. But when you are writing these with the different arguments, okay, you will get no compilation error, and this particular thing is called method overloading. Always remember, method overloading deals with same class, methods of same class. Method overloading deals with same class, okay. Let's see in the coding. समझ रहा है ना? See, suppose we have one class called polymorphism.java. Okay, write it down, do it yourself. Polymorphism.java. Let me know once done. इतना सा फाइल क्रिएट करना. Okay, now let's say I am writing one method
public void add, same thing, right? Public void add int in num1 int num2, right? So what would be the output here? Sysout n1 num1 plus num2. Okay, now let's say I am writing a same method, okay, without changing the arguments or anything. See what is the error you are getting here? Duplicate method, int add int, you cannot write like this. Okay, so what you have to do is, if you are changing something in the argument, int num3, see, it is taking the method name, so we'll do num3 here plus num3. This is called method overloading. Okay, same name but different argument. Let's say I am putting public, let me copy this thing, and let's say I don't want to, I also want to put or add to double number, double, and this is also double. Okay, and num1 plus num2 will be like this, add. Okay, now I can also return some values. Public, let's say I have another method which will return, not just put it, I mean not just show it, rather return, sorry, it's a double, and here the return type will be the addition of these two numbers. Can I do that? Okay, can I do that? No, it's again duplicate method, because the number of or there is no change in arguments between these two numbers. However, there is a change in return type. See, here it is void, here it is double. Okay, but there is no change in argument, so it is not possible. Okay, duplicate method it will show. So if you do like this, it is an int. Not int is also not possible. Suppose it's a floating point. Okay, and then it is another float, num2. Then it is possible, because we are changing what? We are changing the arguments. Okay, we are changing the arguments here. Now if we put some main method, public static void main, and if we instantiate this polymorphism class, polymorphism equal to new polymorphism, right? Did you see how I got this polymorphism name? Just write this polymorphism, then space, then the VS Code automatically will suggest the name of the variable. Okay, take it. Okay, take that suggestion. So to call these add methods, we have to instantiate the class, and then what we can, suppose add, I can suppose 1, 2. So which method it will call? This method, int and int. There are two ints, right? It will give me number 3. See, number 3. It's given me number 3, right?
Now if I want to add more than one integers, one, two, three, and then 4, because we have three number, provided the provision to add up to 3 numbers, right? So this particular method will be called, okay, which has 3 arguments, correct? So it will give me what? 7. 4 plus 2 plus 1 is 7. If I want to add two double numbers, right? Suppose let's say 1.008 and 2.567, डबल नंबर है ना ये, सी 3.575. डबल नंबर एंड फ्लोट नंबर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट? डबल एंड फ्लोट में डिफरेंस ये है कि फ्लोट में बाइनरी दिस डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लेता है, राइट? एंड डबल में मोर देन 1 डिजिट. Okay, suppose I want to print some float number. System sysout and polymorphism dot add. Okay, float means suppose 1.1 f is mandatory, and 2.3 f, right? So which one will be called here? This one will be called, right? That float number, sorry, return, it is double, it is returning double, right? So it will be float, let's say. Read for हाँ, डबल एंड फ्लोट का ये डबल मैंने ये किया ना, ये देखो, I have already called this double method. Let's print out something, okay? Sysout, okay, here we'll add method with 2 integers, arguments, okay? Here add method with 3 integer arguments. Add method with 2 double arguments, and here add method with 2 float arguments, okay? Then whichever method will be called, this particular message will be displayed or printed. So we will understand what is happening. See, right? See, 3.4, it is the float method is coming. Double, for double 3.575, double is coming, double method is called, okay? Add method with 3 integers, 7 is coming, right? Like that. ये कहाँ गया इसका? Add method with 2 integers, it is 3. Add method with 3 integers, argument 7. Add method with 2 double arguments, this one, and add method with 2 float arguments. If you can see, in the float number, it is only giving me 1 digit after decimal point, right? This is the property of float. This is the
property of float. This is 32 byte. Okay, now do it yourself in your local. Analyze this particular code and let me know if there is any conceptual gap. This is called method overloading. After you are done, you just share your screen and show me what you did. प्रीतम कहाँ तक पहुँचा? Share your screen. Let's see what is happening. Hmm. Hmm.
Uh, you are still with Westpac or some with some other project in Infosys? You are still with Westpac or in okay? Which stream? Which project? अच्छा, किसको रिपोर्ट करते हो? नहीं नहीं, वो नहीं, इधर की है, ये। अच्छा, शी नोज मी। और खुशबू, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है अभी? सिटी बैंक। सिटी बैंक वो रामा है, रामा। सिटी बैंक। नहीं वो अंदर पता नहीं कौन कौन है, पता है क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मैंने सपोर्ट किया था ऑटोमेशन में। सिटी आई थिंक अंडर श्रुति, राइट? श्रुति रामाकृष्ण। प्रोग्राम मैनेजर कौन है? श्रुति है शायद। नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा जो मैनेजर है वो कहाँ पे रिपोर्ट करता है वो देख लेना। अच्छा, और राकेश कुमार सिंह किसको रिपोर्ट करता है? लेकिन आई थिंक सिटी। अच्छा, नहीं नहीं, सिटी, सॉरी, सिटी नहीं, वो श्रुति रामाकृष्ण अभी यूरोप का देखता है सब, मतलब देखती है। ओके। अच्छा, प्रीतम, पब्लिक डबल एडिशन। ओके, डबल तुम रिटर्न टाइप दिए हो लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। जब भी तुम व्हेन यू आर गिविंग सम रिटर्न टाइप अदर देन void, then you have to return something. रिटर्न, ओ ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में नहीं। रिटर्न डबल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना होता है। डबल रिजल्ट हमें रिटर्न करना होता है। नाम 1 प्लस नाम 2 को रिटर्न करो इधर। रिटर्न नाम 1 प्लस नाम 2, दिस इज द रिजल्ट, राइट? समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। यहाँ पे भी तुमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा या सिस आउट स्टेटमेंट देना पड़ेगा?
राइट, रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करो। अभी मेन मेथड लिखो। देन व्हाट नेक्स्ट? पी कैपिटल, वो जो लाइन नंबर, न्यू पॉलीमॉर्फिज्म जो लिखे हो ना, पी कैपिटल, न्यू पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ वो क्लास नेम होगा, पी कैपिटल, राइट। अच्छा क्या क्लास नेम, अच्छा क्लास नेम गलत दिए हो, क्लास नेम को चेंज करो, पी कैपिटल। वहाँ पे देखो ऑप्शन तुमको देगा कि चेंज इन फाइल नेम ओनली। हाँ, क्विक फिक्स, क्विक फिक्स में जाओ, देखो क्विक फिक्स करके है नीचे, हाँ, रीनेम फाइल टू पॉलीमॉर्फिज्म डॉट जावा, हट जाएगा। फिर से करो, फिर से प्रोसेस करो, और नहीं जस्ट होवर करो, होवर, होवर ऑन इट, क्विक फिक्स, रीनेम पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, नहीं नहीं वो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, नहीं हो रहा है क्या यहाँ से? तो एक काम करो, उधर जाके रीनेम कर दो, राइट क्लिक करके रीनेम कर दो। ओके, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल। क्या है वो, क्या एरर दे रहा है? क्विक फिक्स में जाओ, क्या है क्या? चेंज टू पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, उसको डिलीट करके फिर से लिखो, उसको डिलीट करो, डिलीट करके फिर से लिखो। वो जो वेरिएबल नेम लिखे हो ना, वेरिएबल नेम इज रॉन्ग, वेरिएबल नेम लाइन नंबर 17 में वेरिएबल नेम पी के स्मॉल होगा, पी स्मॉल, हाँ, नाउ इट विल बी ऑल फाइन। नाम वन जो तुम डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है, क्या क्या टाइप है तुमको दिखाना पड़ेगा ना, इंट फ्लोट ये सब तुमको दिखाना पड़ेगा, राइट।
ओके फाइन, ठीक है, तुम करके मुझे बताओ। ओके, खुशबू, शेयर योर स्क्रीन, लेट्स सी। ओके, हाँ, क्या डाउट? हाँ तो उसको तुम रिटर्न टाइप लिखे हो ना, लाइन नंबर 9 में, डबल लाइन नंबर 9 में देखो, डबल रिटर्न टाइप है, तो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा रिजल्ट। तो रिटर्न व्हाट, नाम वन प्लस नाम टू, रिटर्न नाम वन प्लस नाम टू। वहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे नहीं, रिटर्न, नीचे रिटर्न लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एनीवे तुम दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी हम लोग रिटर्न टाइप देंगे तभी हम लोग कुछ शो नहीं करेंगे डायरेक्टली, हमें मेन मेथड में वो रिटर्न करना है। अभी मेन मेथड विल डिसाइड वेदर इट इज़ टू प्रिंट और डू सम अदर वर्क। वहाँ पे कहाँ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो उधर? वहाँ पे नहीं, वो तो मेथड के अंदर हो गया। मेथड के बाहर आओ। इस मेथड में क्या रिटर्न रहेगा या सिर्फ सिस आउट रहेगा? क्यों? रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? फिर तुम्हें तो रिटर्न करना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि ये नेक्स्ट जो मेथड लिखे हो उसको क्लोज नहीं किया तुमने, उसको ब्रैकेट से क्लोज करो। हाँ, ठीक है। और रिटर्न के बाजू में एक स्पेस दो, रिटर्न के बाजू में एक स्पेस दो पहले। क्या सीस आउट क्या करना है? मेन मेथड में करना है ना वो चीज़, तो मेन मेथड में जाओ, मेन मेथड लिखो। सीस आउट तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मेन मेथड लिखो, मेन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, करो, क्या प्रिंट करना चाहते हो करो, देखते हैं।
कैसे सॉल्व होगा वो? ऐड टू नंबर्स मेथड कहाँ पे है? क्या है क्या वो? From where you got this add two numbers? और ये नाम वन नाम टू क्या है? तो वहाँ पे डिक्लेयर किए हो एनी नंबर्स, तो नंबर देना पड़ेगा। वन कॉमा टू प्लस तो किए हो ना उधर, तो अभी क्या दे रहा है? क्या प्रॉब्लम दे रहा है अभी? ऐड में देखो, ऐड के नीचे ब्लैक रेड कलर का कंपाइलेशन एरर है, क्या दे रहा है? कल बहुत टाइम वेस्ट किया मैं इसके लिए। हाँ, इसे मैं बार बार बोलता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। कोई भी मेथड, कोई भी फील्ड विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। पी स्मॉल क्यों हुआ? पी स्मॉल क्यों है? पी न्यू पॉलीमॉर्फिज्म में पी स्मॉल क्यों है? वो तो क्लास नेम होगा ना, वो एक्चुअली कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। नाउ हाउ विल कॉल दिस ऐड फंक्शन, ऐड मेथड। करो कॉल। क्यों पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कर रहे हो? इट्स पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म, SM, पॉलीमॉर्फिज्म। एनीवे ठीक है, बाद में डॉट ऐड को कॉल तो करो। पॉलीमॉर्फिज्म डॉट ऐड। अभी देखो, डॉट ऐड तुम कर रहे हो, तुम फिर से वो सीस आउट क्यों कर रहे हो? तुम तो लाइन नंबर 2 में ऑलरेडी सीस आउट किए हो ना, तो सीस आउट करने की क्या ज़रूरत है? जो रिटर्न करोगे उसके लिए सीस आउट करो अलग से।
तो लाइन नंबर 18 की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइन नंबर 18 डायरेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म डॉट ऐड. सीस आउट स्टेटमेंट को हटाओ ना मैडम. सीस आउट स्टेटमेंट हटाओ. हाँ, ब्रैकेट को हटाओ. ऐड में, ऐड के अंदर ब्रैकेट में 1,2 लिखो. मेथड, ऐड मेथड को कॉल कर रहे हो. 1,2 क्या? नहीं, बिना ब्रैकेट लगाए कैसे कर सकते हो? आ रहा है समझ में क्यों वैसे कर रहे हैं हम लोग? ऑलरेडी सीस आउट स्टेटमेंट तुम लाइन नंबर 3 में लिखे हो. देर इज़ नो रिटर्न टाइप, तो वो सीस आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, वन कॉमा 2,3 और समथिंग लाइक दैट. 3 इंटीजर्स को करो. इसमें 3 इंटीजर्स आएंगे आर्ग्यूमेंट में. ठीक है. अभी डबल, डबल को कॉल करो. कैसे करोगे? डबल में क्या रहेगा? सीस आउट रहेगा. डबल पे सीस आउट रहेगा क्योंकि डबल पे कुछ सीस आउट स्टेटमेंट है नहीं, उसको रिटर्न कर रहे हो. नाउ इट इज मेन मेथड्स ड्यूटी टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर. वो बाहर क्यों कर रहे हो? ब्रैकेट दिए क्यों? लाइन नंबर 19 में क्यों ब्रैकेट? पॉलीमॉर्फिज्म डॉट ऐड, और नीचे डबल वाला उसमें क्लिक करो. ब्रैकेट दो. ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट. नाउ ऐड में ये करो दोनों. ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट दो. क्या कर रहे हो तुम? नाउ बाहर क्या ब्रैकेट है? कर्ली ब्रेसेस क्यों डाला उसमें? लाइन नंबर, हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट दो, डालो उसमें. ऐड के पीछे मेथड कॉल करना है ना. मेथड को कॉल कर रहे हो. मेथड तो ऑलवेज एंडिंग विथ ब्रैकेट्स ना. अभी वो आर्ग्यूमेंट में क्या डालना है? डबल नंबर्स डालना है. 2 डबल नंबर्स. अब ये फ्लोट को कॉल करो सेम वे. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे होता है? डेसिमल के बाद कितना पॉइंट्स होता है? कितना कितना डिजिट होता है?
फ्लोटिंग में डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट होता है और एंड्स विथ स्मॉल एफ. हाँ, एक डिजिट एंड एंड्स विथ स्मॉल एफ. 1.4 और 1.3 एफ. हाँ हाँ, वो फ्लोट पॉइंट एफ. हाँ, दिस इज द फ्लोट पॉइंट. ओके, अदरवाइज इट विल कंसिडर्ड एज डबल. डबल में तो मैक्सिमम तुम्हारा मोर देन वन डिजिट, लेकिन वन डिजिट भी तो रह सकता है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डबल. ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट समझाने के लिए जावा को और जेवीएम को वी कंसिडर एफ, स्मॉल एफ. हाँ, नाउ रन इट. आया लास्ट लास्ट वाला. ये तो गलत आया रिजल्ट, क्योंकि वो तो फ्लोटिंग पॉइंट देना चाहिए. क्या प्रिंट तो हुआ है, प्रिंट किया है ना. फिर क्या गलती हो सकती है उसमें? और नीचे वाला देखो क्या है, ये फ्लोट वाला ही आया ना, कॉल किए तो स्पेस. नहीं नहीं, वहाँ पे क्यों डाल रहे हो? वो तो मेथड नेम, वो तो मेथड नेम, वो हो गया. 1.3f प्लस 1.4f है ना. क्या रिजल्ट क्या आएगा? डबल में रिजल्ट आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? देखो, थोड़ा सोचो 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 सोचो. सोचो. सोचो और थोड़ा सा सोचो. तब तक प्रीतम कहाँ तक पहुँचा?
हम्म। शेयर किया क्या? ओके। हाँ, बताओ। क्या आ रहा है? जावा लैंग एरर, कंपाइलेशन प्रॉब्लम। सिंपल। कंपाइलेशन प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये देखो, लाइन नंबर 21, 22, 23, 24। नाम तुम एक बार, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइट। नाम वन एक बार ऑलरेडी तुमने डिक्लेयर किया, वो फिर से नाम वन नहीं होगा। ठीक है, लाइन नंबर 21, 22 वो देखो। हाँ, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस क्या स्मॉल लेटर क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पी एडिशन, एडिशन के बाद कोई ब्रैकेट नहीं, क्यों क्यों नहीं है वो मेथड? प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर कॉलिंग द मेथड्स। क्या कर रहे हो? वहाँ पे चेंज क्यों कर रहे हो? वहाँ पे चेंज करके क्या फ़ायदा है? नाम वन नाम टू, तुम तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हो ना एडिशन के लिए, तो उसमें क्यों चेंज करना है? तुम जहाँ पे नाम वन नाम टू को डिक्लेयर कर रहे हो वहाँ पे चेंज करना है, मेन मेथड के अंदर। लाइन नंबर 7 में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है लाइन नंबर 7? क्या? वॉइड मेथड कैनॉट रिटर्न, तो वॉइड में क्यों रिटर्न टाइप है ना? वॉइड में तो तुम कुछ रिटर्न नहीं करोगे। राइट। टाइप करो ना, कैपिटल एस सिस आउट, SYSOUT सिस आउट। हाँ, कंट्रोल स्पेस मारो, कंट्रोल स्पेस। यार, लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। नाम वन प्लस नाम टू प्लस नाम थ्री। नहीं हो रहा है बॉस, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये प्रोग्राम पूरा फुल जो प्रोग्राम है मैं चैट में देता हूँ। पुट इट इन योर आईडी एंड रन। पूरा ठीक से कॉपी करो, कॉपी करके रन करो। सेम फॉर खुशबू।
हाँ, स्टार्टिंग से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके पूरा कंट्रोल वी कर दो। ये पूरा गया नहीं क्या? पूरा गया नहीं शायद। एक सेकंड। कहाँ तक गया? फ्लोट फ्लोट मेथड गया? डबल तक गया है ना? ठीक है। ये चैट का लिमिटेशन होता है ना, इसीलिए नहीं गया। हाँ, भेजा मैं अभी। रेस्ट पार्ट भेजा। क्लास नेम वो गलत दे रहा है तो वो ठीक करो ना। वो कहाँ क्लास क्लास नेम है? वो तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ऊपर देखो, लाइन नंबर 1 में क्विक फिक्स में जाओ। क्विक फिक्स होवर करो, उसके ऊपर होवर करो। हाँ, होवर होवर ओनली होवर। बाहर क्लिक करो एंड देन होवर। हाँ देखो नीचे क्विक फिक्स है। हाँ, जो विंडो ओपन हुआ, हाँ क्विक फिक्स में जाओ। रीनेम फाइल हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम दे रहा है और क्या प्रॉब्लम है? ब्रैकेट का इशू होगा। देखो, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सब सही है कि नहीं देख लो। ए कैपिटल है। ए क्यों है? किसने लिखा है कैपिटल ए? किधर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट या फिर कुछ हो गया? देखो, हाँ लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। एंटर मारो वहाँ पे। अभी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दो, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। हाँ, अभी ये प्रोग्राम को एनालाइज करो। लाइन बाई लाइन पढ़ो मत, समझो चीज़ों को। वो क्यों क्यों वो ऐड मेथड बार बार लिख रहा हूँ उसको वो समझ में आया क्या? मेथड ओवरलोडिंग वाला समझ में आया क्या?
मेरा सारे जो मेथड का नेम है वो ऐड ही है, दूसरा कुछ नहीं है। वो क्यों ऐसा है समझ में आया? हाँ, तो वो मेथड ओवरलोडिंग होता है, तब जाके मेथड ओवरलोडिंग होगा। और प्रोग्रामिंग मतलब ये एक जो क्लास और ऑब्जेक्ट वाला चीज़ है, ये क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों को? मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये नहीं, प्रैक्टिस नहीं, समझो। प्रैक्टिस तो दूर की बात, प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, बट वाई यू आर राइटिंग add then space like this? You are calling the methods, right? क्या कन्फ्यूजिंग? क्यों कन्फ्यूजिंग? तभी होता है जब भी समझ में नहीं आता है। कन्फ्यूजिंग तभी होता है जब समझ में नहीं आता है। तुम समझ के करो ना, कौन सी जगह पे ऐसा है? तुम जैसे तभी लिख रहे थे विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट, राइट? विदाउट डिक्लेयरिंग एनी ऑब्जेक्ट यू आर डायरेक्टली कॉलिंग ऐड मेथड, ठीक है? ऐड में फिर से तुम int 1 int num 1 प्लस int num 2 कर रहे हो। वाई? फिर मेथड किस लिए है? मेथड तुम वो कोड को रीयूज कर सको इसलिए है ना, अदरवाइज तो num 1 प्लस num 2 लिख सकते थे। मेथड्स क्यों लिखते हैं? मेथड्स को तो मतलब वो सब काम सिर्फ मेन मेथड नहीं करेंगे, सब काम तुम्हारे मैनेजर करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, तुम्हारे अलग अलग टीम को डिवाइड कर दिए हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, एंड ऑफ द डे मुझे वो काम दो, आई विल सेंड द रिपोर्ट टू मैनेजर टू क्लाइंट, एंड वॉट एवर आई विल प्रोसेस दैट वर्क। द सेम थिंग हियर। प्रीतम सर, क्या है वो? रन हुआ नहीं? क्या मतलब गलत क्या क्या कर रहे थे? समझ में आया क्या तुमको? दोनों, आई मीन फॉर बोथ ऑफ यू, आई एम ऑब्जर्विंग ये जो बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट वाला चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा है ना? और क्यों, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो बताओ ना, फिर जाके वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब टेस्ट रिजल्ट मिल गया है, ठीक है, कि ये तुम्हारा बीमारी है, वो बीमारी क्यों है, कहाँ पे है? दर्द है तो समझ रहा हूँ, वो दर्द कहाँ पे है वो बताना पड़ेगा ना, फिर जाके मैं सॉल्व करूँगा उसको। को क्या? पब्लिक प्रोटेक्टेड? वो ऐड सब्ट्रैक्शन वो नाम से कुछ नहीं आता जाता है। असली है मतलब ओरिजिनली तुम उस मेथड बॉडी में क्या लिख रहे हो वो डिपेंड करता है। तुम सपोज एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख रहे हो, नथिंग, आई मीन नथिंग विल चेंज, ठीक है? तुम बॉडी में क्या कर रहे हो? बॉडी में तुम दो नंबर को ऐड कर रहे हो। देखो लाइन नंबर 4 में system.out.println में तुम लिखे हो num1 प्लस num2, और तुम वो जो ऐड बोल रहे हो ना वो सिर्फ एक नाम है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे खुशबू, ओके, खुशबू सरनेम क्या है? वर्मा है शायद से, तो वो तुम्हारा क्या है? नाम है तुम्हारा। अगर नाम खुशबू ना हो के कुछ दूसरा होता तो कुछ फ़र्क पड़ता क्या? जब मतलब इस जगत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? खुशबू इज़ योर आइडेंटिफिकेशन थिंग्स, all your ID card and everything will have the same thing. तो वो सिर्फ मेथड नेम है, एक टीम नेम है, राइट?
वो कुछ भी हो सकता है। ओरिजिनल है मेथड बॉडी में तुम क्या ऑपरेशन कर रहे हो। और वो पब्लिक छोड़ दो अभी, ठीक है, वो ऐसे ही लिखे हो। वो पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, सब कुछ डिफ़ॉल्ट सब कुछ लिख सकते हैं। उसका एक्सेस मॉडिफायर मैं बाद में समझाऊंगा क्या है, बट फॉर नाउ टेक इट द मेथड एंड मेथड नेम, रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम। ओके, वो पब्लिक छोड़ दो अभी, लीव द पब्लिक फॉर नाउ। Only consider the return type, that is void, float, double, int, whatever you are returning, and then the method name and method body. Method body is main thing. What operations you are doing. एक टीम में तुम काम क्या कर रहे हो, टीम का नाम क्या है, फलाना ढमकाना क्या नाम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जगत को, इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे टीम के नाम क्या है। बट ये फ़र्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी टीम क्या कर रही है। तो दैट इज़ द सेम थिंग हियर। और क्यों ये ऐड, क्योंकि नेम ऑलवेज रिवील द वर्क। ओके, ऐसे करके हम लोग नाम लिखे हैं। क्या कर रहा है ये चीज़, ये ऐड कर रहा है, ऐड नंबर्स कर रहा है, इसीलिए ऐड लिखा। we could write addition of 2 numbers, addition of 3 numbers, not 3 numbers, addition of numbers, ऐसे करके लिख सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बट मैंने ऐड लिखा, लिख सकते हैं ना, उसमें क्या है, ये मेरे ऊपर है, डेवलपर के ऊपर है। कॉन्सेप्ट को समझो, उसमें कॉन्फ्यूज होने वाली कुछ कोई बात ही नहीं है। जिसमें तुम मतलब दिमाग लगा रहे हो ना, वो पब्लिक क्या है, उसमें प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, वो अभी छोड़ ही दो, वो तो सब कुछ लिख सकते हो। वो एक्सेस मॉडिफायर के लिए एक पूरा क्लास लेने वाला हूँ मैं। बट फॉर नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज योर रिटर्न टाइप एंड द मेथड नेम एंड मेथड बॉडी। मेथड बॉडी मतलब क्या काम कर रहे हो तुम उस मेथड से। और क्या कन्फ्यूजन है बताओ। प्रीतम, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हो, क्लियर करो, चीज़ों को क्लियर करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। कॉन्फ्यूजन को मैंने बोल दिया ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो सब छोड़ दो, पब्लिक जहाँ पे लिखा है वो छोड़ दो, ठीक है। मतलब पब्लिक को कंसीडर मत करो, लिखो अभी, बट विल टेक क्लास, आई मीन विल डिस्कस दिस पब्लिक कीवर्ड्स एंड ऑल। दीज आर जस्ट एक्सेस मॉडिफायर्स। उस मेथड को कितना लेवल तक तुम एक्सेस करवा रहे हो वो डिफाइन करता है ये पब्लिक। Your thing will be, your consideration should be the method name and method body. Let me share my screen. Okay, fine. Okay, method suppose लिख रहे हो तुम इधर पब्लिक, हाँ, पब्लिक void add, हाँ, यहाँ पे 2 नंबर, int num1 and int num2, ठीक है। ये पब्लिक को अभी छोड़ दो, पब्लिक अभी लिख रहे हैं, ठीक है, बट वी कैन omit दिस ऑल्सो। ओके, वी कैन omit दिस ऑल्सो। ये है मेथड, मीन्स ये एडिशन जो मेथड है वो एडिशन वाला काम करेगा, राइट। हाँ, इसको ये एडिशन की जगह ऐड की जगह मैं दूसरा कुछ भी नाम दे सकता हूँ। लेट से ये इसका नाम है प्रीतम, ऐड नहीं, ये प्रीतम, मेथड का नाम है प्रीतम। आई एम द डेवलपर, आई कैन डू एनीथिंग, राइट। नाउ
important is what this method body means ये opening कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिख रहे हैं. तो ये क्या है, ये है वी विल प्रिंट द एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, so what we'll do, num1 plus num2. This is the whole work of this particular method. नाउ यहाँ पे अभी मैं मेन मेथड को डिक्लेयर किया. ओके, मेन मेथड है मेरे पास. नाउ मेन मेथड में इसको कॉल करने के लिए कैसे, ये डायरेक्टली मैं ये प्रीतम करके जो है मेथड, इसको मैं कॉल नहीं कर सकता. तो उसके लिए क्या है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. Right, so for creating the object, here the class name is, suppose this is the class name obj is the object variable, then new class name, right. and ये ऑब्जेक्ट के अंदर सारे जो प्रॉपर्टीज हमने लिखे हैं इधर वो है. सो obj डॉट प्रीतम अभी अगर किया तो ये एक्सेसिबल होगा ना. प्रीतम के अंदर क्या है, हम लोग प्रीतम जो मेथड हम लोगों ने लिखे हैं वो क्या कर क्या रहा है, 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटीजर्स देंगे 1, 2. दैट्स इट. और ये मेथड जब भी कॉल कर रहे हैं, देखो मेथड का क्या, मेथड कैसे कॉल मतलब लिखते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट देते हैं, राइट. तो मेथड जब भी कॉल करेंगे इधर भी आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ये ब्रैकेट चाहिए, वो स्पेस वगैरह नहीं होता है. समझ रहे हो? फाइन. अभी नेक्स्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग. ओके, मेथड ओवरराइडिंग. ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग डील्स विद द सेम नेम मेथड्स inside one class. Okay, when we are calling about method overriding में child class parent class का concept आता है. Suppose I have a class here. Okay, suppose this is my class A. क्लास A के अंदर ये क्लास A स्ट्रक्चर हो गया. अभी यहाँ पे मुझे मेथड लिखना है. सो सपोज void method 1. ओके, void method 1 ये मेरा पेरेंट क्लास का मेथड है. यहाँ पे और भी मेथड है, बट लेट्स से void method 1 इज वन ऑफ द मेथड्स. ठीक है. नाउ इन द चाइल्ड क्लास वी विल क्रिएट वन चाइल्ड क्लास हियर. ओके, वी विल क्रिएट वन चाइल्ड क्लास हियर. सपोज यहाँ पे मैं सीस आउट करता हूँ. ओके, सीस आउट, और यहाँ पे लिखता हूँ कि क्लास ए. ठीक है, जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ कि क्लास ए. ओके, क्लास ए से आ रहा है ये, जस्ट प्रिंट इट क्लास ए. नाउ दिस इज माई चाइल्ड क्लास विच इज क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए. ऐसे लिखते हैं ना चाइल्ड क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए. नाउ यहाँ पे मैं सेम मेथड ले लूँगा. ओके, void method 1, सेम नेम सेम आर्ग्यूमेंट्स. ओके, void method 1, राइट. यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट समथिंग, लेट्स से क्लास बी.
Okay, class B as a string we are printing it, class B. Now if we instantiate this class B, right, class B uh, object equal to new class B, right, this is how we create object in the main method. यहाँ पे main method रहेगा, right, and if we call this ob dot method 1, now question is which method will be called, this child method or this parent method, which method will be called, because both the methods are same. Child method will be called. This is called the method overriding. This phenomena is called method overriding. Okay, whenever you will call this, you write this method B or method 1, same method, here you will get one @ override. Okay, automatically. Okay, it will automatically be overridden in the child class. Okay, समझा क्या कॉन्सेप्ट? हाँ, सेम मेथड क्लास ए में भी सेम मेथड है, क्लास बी में भी सेम मेथड है. ठीक है, तो क्लास बी में जो child class, because child class method will override the parent class method. Okay, child class method will override the parent class method. That is why it is called method override, method overriding. Okay, method overriding. Child class method, child class field will override the parent class field. That is why it is called method overriding. Do it, do it. मैं प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा नहीं, लिखो. एक चाइल्ड एक पेरेंट क्लास क्रिएट करो. ठीक है, पेरेंट क्लास क्रिएट करो. यहाँ पे कुछ भी लेट्स से मेथड ओवर राइडिंग पेरेंट. ओके, पेरेंट डॉट जावा, ये पेरेंट क्लास तुम्हारा. ठीक है, यहाँ पे एक मेथड होगा METHOD मेथड 1. ओके, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट दे दो या नहीं भी दे सकते हो. और एक क्लास क्रिएट करो मेथड ओवर राइडिंग चाइल्ड. ठीक है, डॉट जावा. तो ये चाइल्ड क्लास होगा, तो इट शुड एक्सटेंड टू क्लास, मतलब पेरेंट क्लास. इट विल एक्सटेंड टू पेरेंट, राइट. एंड देन क्रिएट्स द सेम मेथड, कॉपी पेस्ट द सेम मेथड हियर, मेथड 1 with same argument. Okay, don't put here and there, same argument, same method, everything should be same. Okay, only you put some different method body. Different method body means, let's say, sys out statement or something like that. Okay, put some sys out statement, different sys out statement here and here. And then instantiate class B, instantiate class B or child class child. Okay, instantiate child class, and then see which method you are getting, this method or this method. Got it? Understood what you have to do now? दे रही, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ. ट्राई किया पूरा तो बता दिया मैंने. क्या समझ में नहीं आया बताओ. विल सी.
खुशबू समझ में आया? तो कुछ नहीं समझे हो, कुछ नहीं समझे हो मैडम। देखो, सी मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया क्या? मेथड ओवरराइडिंग सीरियसली बताओ। हाँ, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। कौन सी मेथड किसको ओवरराइड कर रहे हैं? हाँ, वो ओवरराइड कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए? एक पेरेंट क्लास चाहिए, एक चाइल्ड क्लास चाहिए, राइट? तो पेरेंट क्लास में जो मेथड तुम लिखोगे, चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड। इतना यहाँ तक करो। पहले एक पेरेंट क्लास क्रिएट करो, उसके बाद चाइल्ड क्लास क्रिएट करो, और फिर स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट क्रिएट वन पेरेंट क्लास एंड देन क्रिएट वन चाइल्ड क्लास। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेसिक थिंग्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक यू हैव टू हीट हार्ड ऑन इट, अदरवाइज वो रह जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वही आफ्टर दिस क्लास ऑल्सो यू विल रट्टा मारोगे, फिर वो इंटरव्यू में जाओगे, बैठोगे, कुछ 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि तुम रट्टा मार के आए हो। Okay, share your screen. Whoever has done it, share your screen. Okay, fine. Now method overriding जो पेरेंट क्लास है, यहाँ पे एक मेथड लिखो। लेट्स से तुम्हें अभी पब्लिक से प्रॉब्लम है, सिर्फ वॉइड, कुछ मेन मेथड नहीं चाहिए, ओनली जस्ट कुछ दूसरा मेथड, वॉइड मेथड 1। पब्लिक से प्रॉब्लम हो रहा है तो पब्लिक यू कैन ओमिट दिस पब्लिक, मेथड 1, वॉइड मेथड 1। ठीक है? नहीं, वो क्या कर रहे हो? उसका बॉडी तो लिखना पड़ेगा ना उसको, उसमें बॉडी लिखो, मेथड बॉडी, आर्ग्यूमेंट नहीं, बॉडी, मेथड बॉडी, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा। उसमें मेथड 1 ब्रैकेट दो, नॉर्मल ब्रैकेट वो भूल गए क्या कैसे देते हैं? हाँ, अभी यहाँ पे कुछ सिस आउट स्टेटमेंट लगाओ, सिस आउट स्टेटमेंट, कुछ भी सिस आउट स्टेटमेंट लगा दो। लेट्स से आई एम इन मेथड ओवरराइडिंग क्लास, पेरेंट क्लास, आई एम इन मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास, योर क्लास नेम बेसिकली। मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास नेम लिख दो इधर। आई एम राइटिंग मेथड ओवरराइडिंग एंड क्लास नेम लिख दो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम विच मेथड इज गेटिंग कॉल्ड। ठीक है?
नाउ कॉपी द सेम मेथड, ओके, कॉपी द सेम मेथड, ये मेथड को कॉपी करो पूरा। चाइल्ड क्लास में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो ये, और ये मैसेज में कुछ चेंजेस कर दो, आई एम इन चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट। गॉट इट? तो डिफरेंट सेम मेथड बट डिफरेंट मेथड बॉडी हुआ, हाँ, डिफरेंट मेथड बॉडी। ना अभी चाइल्ड क्लास में जो करना है तुमको, वो मेथड, मेन मेथड को कंसीडर करो, मेन मेथड लिखो, मेन मेथड लिखो, मेन मेथड, मेन मेथड। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, वो तो मेथड के अंदर हो गया ना, ये क्लास के अंदर मेन मेथड लिखो। ये मेथड के नीचे आ जाओ, ये पब्लिक मेथड 1 जो लिखे हो उसके नीचे आ जाओ, नीचे ब्रैकेट क्लोज किए हो ना, देखो ना लाइन नंबर 6 में तुम ब्रैकेट क्लोज किए हो, तो वहाँ पे ये मेथड ख़त्म हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट लाइन से तुम्हें नेक्स्ट, हाँ, मेन मेथड। अभी ये जो मेथड ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास है, इसको इंस्टेंशिएट करो, ऑब्जेक्ट बनाओ इसका। हाँ, अभी मेथड को कॉल करो, मेथड 1 को कॉल करो, ए डॉट मेथड 1, ऑब्जेक्ट, यू हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट। नाउ वो ऑब्जेक्ट को मेथड 1, मतलब मेथड 1 को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो। कैसे करोगे? ए डॉट मेथड 1, रन करो अभी। नहीं, पेरेंट क्लास क्यों? पेरेंट नहीं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो पेरेंट क्लास को ही जाएगा, राइट? ठीक है, अभी रन करो ज़रा। कौन सा हो रहा है? आई एम इन चाइल्ड क्लास। हाउएवर you have method 1 in the parent class also, but still it is giving you the child class result, right? तो तुम्हारा चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, दैट इज एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज एक्चुअली ओवरराइडिंग द पेरेंट क्लास मेथड, करेक्ट? मेथड ओवरराइडिंग समझा? पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइडिंग में हमेशा पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास कॉन्सेप्ट रहेगा, इनहेरिटेंस नहीं। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस मत बोलना ये, ठीक है? पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें मिलेगा ये चीज़, मेथड ओवरराइडिंग। खुशबू देवी, कहाँ तक पहुँचा आपका? शेयर, हाँ शेयर करो एक बार।
अनशेयर करके शेयर करो, एक बार अनशेयर करो पहले। नहीं वो देखो ना नीचे है एक पॉज। तुम्हारा ये दिख रहा है लेकिन ये छोटा दिख रहा है एक्चुअली। ये देखो जेस कलर बंद करो। ये देखो एक हैंड का साइन है, उसके बाजू वाला जो उस पर क्लिक करो, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। अभी फिर से शेयर करो स्क्रीन। हाँ दिख रहा है अभी। ओके फाइन। अच्छा मेथड का नेम कैसे स्टार्ट होगा, मैंने बोला था कैमल केसिंग, राइट। तो ये तो पास्कल केसिंग हो रहा है, कैमल केसिंग, राइट ना। पब्लिक वॉइड मेथड, तो ये तुम मेथड बॉडी नहीं लिख रहे हो, मेथड को तुम इधर ही क्लोज कर रहे हो। सेमीकोलन मतलब क्या है, क्लोज। तुम्हें तो मेथड बॉडी लिखना पड़ेगा ना। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये सीस आउट स्टेटमेंट को अंदर डालो। ठीक है, क्या है ये, मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप वॉइड। मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप वॉइड, क्या है ये। क्विक फिक्स करो, एक क्विक फिक्स। हाँ कुछ को वो तुम कुछ गलत किए थे, वो उसका जो मतलब वो ही पकड़ के रखा था एक्चुअली, कुछ नहीं। हाँ चाइल्ड क्लास क्रिएट किए हो, मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट, ओके। नाउ सेम मेथड वो कॉपी करो, उस मेथड को कॉपी करो, पेरेंट क्लास में जाओ, उस मेथड को कॉपी करो। हाँ वहाँ तक नहीं, एकदम ये ब्रैकेट तक, क्लोजिंग ब्रैकेट तक। वो पिंक कलर का जो ब्रैकेट है, पिंक कलर का जो ब्रैकेट है, मेथड बॉडी पूरा कॉपी करना है। पेस्ट। यहाँ पे ये मैसेज में चेंज कर दो, लाइन नंबर 3 में फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड कर दो, फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो। तो सेम नेम, मेथड का नेम सेम है बट मेथड बॉडी डिफरेंट मेथड है, राइट। सो वी हैव अचीव्ड इट, करेक्ट। नाउ यहाँ पे तुम मेन मेथड लिखो, चाइल्ड क्लास में मेन मेथड लिखो, चाइल्ड में हाँ हाँ बॉडी के बाहर, मेथड बॉडी के बाहर मेन मेथड। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सीस आउट स्टेटमेंट नहीं देना है, क्योंकि सीस आउट स्टेटमेंट मेथड में तुम दे चुके हो। कंट्रोल स्पेस मारो, आ जाएगा। हाँ नो ठीक है, इक्वल टू न्यू अभी मेथड को सीस आउट ज़रूरत नहीं है, सीस आउट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। लाइन नंबर 3 में सीस आउट दे चुके हैं, तो हम लोग रिटर्न भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेथड को कॉल करना है। कैसे करोगे, हाँ चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो ना, ये ऑब्जेक्ट थ्रू ऑब्जेक्ट हमें वो मेथड को कॉल करना है। लिखो चाइल्ड डॉट मेथड, है ना। तो अभी रन करो, रन करके देखो कौन सा रिजल्ट आ रहा है। आई एम इन सेकेंड मेथड, चाइल्ड मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है। क्यों हुआ है,
ड्यू टू मेथड ओवरराइडिंग, तुम पेरेंट क्लास में सेम मेथड लिखे हो विद डिफरेंट मेथड बॉडी एंड चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड, बट चाइल्ड क्लास विल ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट क्लास फील्ड। आया समझ में? चाइल्ड क्लास मेथड और चाइल्ड क्लास फील्ड विल ओवरराइड द पेरेंट क्लास फील्ड। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। समझो ये चीज, मेथड ओवरराइडिंग, राइट? ओवरराइड कर रहा है। आया क्या समझ में? हूँ नहीं, मैं फिर से ये करूँगा, मैं पूछूंगा। ठीक है, ठीक है। फिर आज पॉलीमॉर्फिज्म आज कंप्लीट हुआ। ओके, आई वांट यू both of you actually to come up with all the what I say, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मतलब डाउट्स, ऑल द डाउट्स। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं होगा वैसा, बिलीव मी, वैसे नहीं होगा। एक बार जो क्लियर नहीं होता है वो क्लियर अनक्लियर ही रह जाता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड इन टेकिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जो रट्टा मारते हैं उसको पकड़ने के लिए मुझे, मतलब 2-3 क्वेश्चन करूँगा, पकड़ में आ जाएगा कि ये इंसान रट्टा मार के आए हैं। एंड होता है, आई हैड टू रिजेक्ट, मतलब मुझे रिजेक्ट करके, मैं आई डोंट वांट टू रिजेक्ट एनीवन, बट आई हैव टू रिजेक्ट बिकॉज उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और मैं टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे पास, मतलब ऐसे तुम लोग 2 हो, राइट? ये एकदम आइडियल क्लास है जिससे एकदम सब कुछ क्लियर करवा सकते हो। एवरीथिंग यू कैन गेट क्लियर्ड फ्रॉम मी। ऐसा भी मेरा क्लासेस होते हैं, जैसे मेरा जो वीकेंड क्लास है उसमें 7 लोग हैं, पूरा फुल है। ठीक है, मैं अभी स्प्रिंग बूट का ले रहा हूँ क्लास, तो वो 7 लोगों का जो डाउट्स है, whoever is just suppressing their doubts, suppressing means कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ समझ में नहीं रहा, किसी को क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो होगा मैं बाद में पढ़ के मैं समझ लूँगा। उनका वो कंसेप्ट रह जाता है, वो फिर मैं जब भी बाद में जाके कुछ क्वेश्चन करता हूँ ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। समझने का चीज़ है ये, रट्टा मारने का चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये साइंस है ना, रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है ये। हिस्ट्री नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, तुम या फिर लैंग्वेज हिंदी मराठी ये सब कुछ नहीं है कि तुम रट्टा मार के चले जाओगे एग्ज़ाम रूम में। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, समझ के तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन योर डे टू डे लाइफ। दैट इज़ द की। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार तुम सीख लिए ना, तो एक बार इफ़ यू नो जावा, okay, as a language, you will get to know, I mean, it will be very easy for you to adapt Python. It will be very easy for you to adapt Ruby, R, anything, Terraform, right? Golang, anything you can adapt. But first, one language you have to be expert. वो सब सीखना है ना। गोलैंग, पाइथन, सिर्फ जावा से काम नहीं चलेगा, वो तो बेसिक है। वो सिर्फ जॉब मिलने के लिए है, लेकिन काम पे क्या करोगे तुम? तुम्हें जब भी एडवांस कुछ, जैसे मैं हैंडल करता हूँ एडवांस डेवऑप्स थिंग हैंडल करता हूँ कभी कभी, तो उसमें तुम्हें गोलैंग चाहिए, उसमें तुम्हें टेराफॉर्म चाहिए, ठीक है ना, उसमें तुम्हें पाइथन चाहिए for creating some pipeline and all. Groovy चाहिए, Groovy, वो भी एक लैंग्वेज है। So that is very important to have one languages
एंड टू एंड क्लियर, आई मीन क्लियर कॉन्सेप्ट वो चाहिए होता है. So, can I expect all the doubts from tomorrow? I mean, डाउट्स अगर तुम कहाँ पे दर्द हो रहा है नहीं बताओगे तो मैं मेडिसिन नहीं दे सकता, वो क्योर नहीं कर सकता. मुझे तो समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ जो है वो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से तुम लोग प्रोग्राम लिख रहे हो, उस तरीके से ये क्लियर है कि समथिंग इज़ मिसिंग. बाकी तुमको ये चीज़ प्रैक्टिस करो एक बार. ओके, मे बी आफ्टर दिस क्लास ये वीडियो मैं दे देता हूँ, वो वीडियो देखो 2-3 बार. फिर देखो क्या डाउट्स आ रहा है. आई क्लियर एवरीथिंग. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि आई विल क्लियर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट, बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. ठीक है, okay, fine. We'll see what all doubts we are having, then we'll clear one by one, right? ठीक है, चलो. खुशबू and Pritam, we are closing this call.